नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। दार्जिलिंग जिले में 72 जगहों को क्वारंटाइन सेंटर के लिए किया गया है चयनित। टास्क फोर्स की बैठक के बाद जिला शासक ने दी जानकारी। दार्जिलिंग जिले में कोरोना परिस्थितियों को लेकर आज मल्लागुड़ स्थित सरकारी गेस्ट हाउस में टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जिला शासक एस पन्नाबलम सहित स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में जिले में कोरोना परिस्थितियों के बारे में चर्चा की गई। साथ ही बैठक में वर्तमान में बढ़ते मामलों और नियंत्रण पर भी बात की गई। बैठक के बाद जिला शासक ने बताया कि 72 ऐसे शिक्षा प्रतिष्ठानों और सरकारी भवनों को चिन्हित किया गया है, जिसको क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से आने वाले मरीजों को 14 दिनों के क्वारंटाइन में रखा जाएगा, जबकि अन्य जगहों से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन में रहने का आदेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर है और सभी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। মিটিংয়ে মূলত আমাদের বাইরে স্টেট থেকে যারা আসছে শ্রমিকরা এবং স্টুডেন্টরা যারা বাইরে গিয়েছে ওরা আসছে, ওদেরকে আমাদের নতুন এসওপি, যেটা আমাদের গভর্নমেন্টের নতুন এসওপি অনুযায়ী কীভাবে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইনে যাবে আর কারা কারা হোম কোয়ারেন্টাইনে যাবে তার ব্যবস্থা কি করা আছে, আর কি কি হেল্প লাগবে। লোকাল আমাদের জনপ্রতিনিধিরাও ছিলেন, ওনাদের হেল্প কি লাগবে আর আমাদের প্রশাসনিকভাবে কি কি হেল্প আমরা দেব, এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সে মূলত 5টা স্টেট থেকে, যেটা হাই বার্ডেন স্টেট যেটা আমরা বলি, স্টেট আইডেন্টিফাই করেছে, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ আর তামিলনাড়ু। ওদেরকে আমরা এইদার ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইনে পাঠাচ্ছি, আদারওয়াইজ আমরা লোকালিও অনেক স্কুলগুলো আইডেন্টিফাই করা হয়েছে, গভর্নমেন্ট বিল্ডিংগুলো আইডেন্টিফাই করা হয়েছে, ওখানেও আমরা পাঠাচ্ছি। যেহেতু প্রচুর সংখ্যা আসছে, সবাইকে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইনে রাখা সম্ভব নেই কোনোভাবে। সো ওদেরকে সরাসরি এলাকাও পাঠানো যাবে না। সো ওদেরকে এটা লোকালিটি কোয়ারেন্টাইন, বোথ হিলস অ্যান্ড প্লেন্সে এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা করা হয়েছে। প্রয়োজন আছে। আর হচ্ছে আমাদের কীভাবে ওয়ার্ড কমিটি এবং কাউন্সিলরদেরকে একটু আগেই কীভাবে জানানো যায় যাতে তারা ইনভলভ হতে পারে, কারণ এর সাথে কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্ন জড়িয়ে যাচ্ছে। এই সময় ইকোনমিক ইস্যু, সোশ্যাল ইস্যুস, এমনকি ল অ্যান্ড অর্ডার ইস্যু মানে জড়িয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য আমাদের পুরো বিষয়টাকে একটা পরিকল্পনা তৈরি করে আমাদের এগোনো উচিত। এই হচ্ছে আমার একটা সাজেশন আমি দিয়েছি। আর কি প্রস্তাব নেই? কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বাড়ানোর কোনো প্রস্তাব দিয়েছেন? কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বাড়ানোর জন্য আমি বলেছি শিলিগুড়ি এবং বিশেষ করে 14টা ওয়ার্ডের মধ্যে বেশ কিছু ভবন আছে, সেগুলোকে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। কিছু স্কুল হতে পারে, কিছু এলাকার মধ্যে কিছু ক্লাব হতে পারে। আর আমরা জোর দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাওয়ারনেসের উপরে, মানুষকে সচেতন করা। কোনো ক্ষেত্রে এরকম অবস্থাটা হয়ে যাচ্ছে যেটাকে নিয়ে একটা আইন শৃঙ্খলার অবনতির ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। তো আর কীভাবে একটু আগে জানানো যায় কাউন্সিলরদের বা পঞ্চায়েতকে, যাতে তারাও একটু এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। আমাদের পক্ষ থেকে 100% আমরা সহযোগিতা থাকবে। আমাদের যে দায়িত্ব আমরা যেমন ভাগ করে নিচ্ছি, আমাদের কাজটা কী হবে, আমরা 1, 2, 3, 4 করে 20টা পয়েন্ট ঠিক করেছি, আমাদের এইভাবে কাজ হবে। আমি বলি আরও যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে তারা ঠিক করে দিই। कूच बिहार में कोरोना के 29 नए मामले। जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या पहुंची 116। 26 स्वस्थ होकर लौटे अपने घर। कूच बिहार जिले में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए हैं। इसे लेकर अब तक कूच बिहार जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 116 हो गई है। इनमें 26 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। फिलहाल 90 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। कूच बिहार के जिला शासक पवन कदियान ने बताया कि मंगलवार को नए सिरे से 29 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। ये सभी दूसरे राज्य से अपने गृह क्षेत्र पहुंचे थे। इनमें से किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए थे। कोरोना मरीजों में दिनहाटा 1 के 11, दिनहाटा 2 के 15 व सिताई के 3 मरीज शामिल है। दूसरी ओर जिला प्रशासनिक सूत्र के अनुसार कूच बिहार में इससे पहले एक बार में जिन 32 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई थी, दूसरी बार इन सभी के सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसमें से 26 लोगों की रिपोर्ट्स नेगेटिव पाई गई है। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे देश में फैल चुका है। ऐसे में पहाड़ी इलाका भी इससे अछूता नहीं है। मिरिक के एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। बताया जाता है कि उक्त व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। वह हरियाणा से अपने गृह क्षेत्र मिरिक 30 मई को पहुंचा था।
उक्त व्यक्ति की स्वैब के नमूने जांच के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटोरी में भेजा गया था। कल रात उक्त व्यक्ति की सैंपल्स पॉजिटिव पाई गई। उक्त 50 वर्षीय व्यक्ति को कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की पुष्टि आज मिरिक खंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की BMOH डॉक्टर टांशी लामा ने की है। हाल ही में उक्त पॉजिटिव व्यक्ति को उपचार के लिए सिलीगुड़ी स्थित कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां मरीज का इलाज चल रहा है। मेरे खंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के BMOH डॉक्टर टांशी लामा ने आम लोगों को संयम, जागरूक एवं सचेत तथा हर संभव सतर्कता अपनाने की अपील की है। दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बस्टा की पहल पर लगातार विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में PPE किट्स, मास्क, सैनिटाइजर देने का क्रम लगातार जारी है। एक बार फिर से इसी क्रम में आज सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में काफी संख्या में मास्क व PPE किट्स प्रदान किया गया। इस बारे में अधिक जानकारी सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला भाजपा अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने दी है। এখানেও আর পুরো ওনার কনস্টিটুয়েন্সিতে যেখানে যেখানে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারস আছে সেখানেও সময় সময়ে উনি নানান ধরনের সাহায্য প্রদান করেছেন। এর ছাড়া নানান ধরনের যে ব্যবস্থা প্রারম্ভ করার জন্য ICMR ল্যাব হোক, RNA টেস্টিং হোক, এই সব ধরনের বিষয় নিয়ে পর্যায়ী শ্রমিক হোক, সব ধরনের ব্যবস্থার সুবিধার জন্য উনি লাগাতার প্রতিনিয়ত কেন্দ্রীয় সরকারকে, রাজ্য সরকারকে লিখে আর বিষয়গুলোকে একটা সচেতনতা রাখার পরে বিষয়গুলোকে চালু রেখেছেন। আজকে আমরা এটা আরেকটা স্টেপ, কালকেও আমাদের কয়েকটা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে আমাদের কয়েকটা টিম দিতে গিয়েছে। আজকেও কয়েকটা 2-3টা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ব্লক লেভেলে সেখানেও লোকজন দিতে গেছে, জেলার টিম দিতে গেছে। আজকে আমরা এখানে MDMCH এর এখানে এসেছি আর পুরো সাংসদের যে সাহায্য এই ক্ষেপে এর আগে যখন দিয়েছিলাম তখন 10,000 মাস্ক আমরা দিয়েছিলাম, সার্জিক্যাল মাস্ক। এবার আমরা 500 PPE কিট আর প্রায় 5,000 মাস্ক একবারে সব জায়গাতে দিয়েছি। আর তার ছাড়া হেড ক্যাপ আছে, কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে বাকেট আছে, ডাস্টবিন আছে, সোপ আছে, নানান ধরনের যেটা প্রয়োজনীয় বস্তু আছে সেটা এমপির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। এরপরেও যখনও দরকার পড়বে এটা আমরা এমপি সাহেব সবসময় মনিটরিং করছেন আর সব জায়গায় সবসময় ডাটা তথ্যগুলো নিচ্ছেন। যেখানে যেখানে প্রয়োজন পড়ছে সেখানে সেখানে উনি নিজের তরফ থেকে চেষ্টা চালাচ্ছেন। পুরো সুযোগ এটার জন্য আমাদের দার্জিলিং জেলার যিনি দার্জিলিং এমপি যিনি আছেন রাজুজি, ওনাকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। हेमताबाद किसान मंडी में बनाया गया कोविड-19 अस्पताल, संक्रमित रोगियों की जाएगी चिकित्सा। अभी तक कोरोना संक्रमित रोगियों की चिकित्सा हेमताबाद ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र में किया जाता था, लेकिन यहाँ पर काफी संख्या में लोग भी आते हैं, इसलिए संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर किसान मंडी में कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है। यहाँ पर संक्रमित रोगियों की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर दिनाजपुर जिले में सबसे पहला कोरोना का मामला सामने आया था। इसके बाद से प्रशासन अलर्ट है और कोविड-19 संक्रमित रोगियों की चिकित्सा पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर दिनाजपुर में वर्तमान के दिनों में काफी तेजी से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, इस्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ट्रक में गांजा की तस्करी, एक गिरफ्तार। NGP थाने की पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 52 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार NGP थाना अंतर्गत फुलबाड़ी इलाके में खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर कुम्हार से लदे ट्रक में तस्करी की जा रही भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। ट्रक जलपाईगुड़ी के फालाकाटा की ओर जा रहा था। पुलिस ने ट्रक के चालक व मालिक ललन रॉय को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया आरोपी बिहार का रहने वाला है। आरोपी को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। उसी के साथ पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। साथ ही तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। भारत लौटे भूटान में फंसे 86 प्रवासी श्रमिक। कोरोना महामारी को लेकर देश भर में जारी लॉकडाउन के 67 दिनों बाद पड़ोसी देश भूटान में फंसे 96 प्रवासी श्रमिक मंगलवार को भारत पहुंचे। देश में अचानक हुए लॉकडाउन के कारण ये प्रवासी श्रमिक भूटान में फंसे हुए थे। आखिरकार लॉकडाउन के 67 दिनों के बाद भारत भूटान मैत्री समझौते के प्रावधानों के अनुसार मंगलवार को भूटान सरकार ने भूटान में फंसे 96 प्रवासी श्रमिकों को राज्य सरकार को सौंप दिया। भूटान से लौटे श्रमिकों में अलीपुरद्वार जिले के 31, जलपाईगुड़ी जिले के 5, कूच बिहार जिले के 51, कोलकाता के 2, दक्षिण व उत्तर 24 परगना के 2 श्रमिक शामिल है। अलीपुरद्वार जिला परिषद के मेंटर मोहन शर्मा समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी आज भूटान गेट पर इन श्रमिकों का गर्मजोशी से स्वागत किया। दूसरी ओर भारत लौटने पर श्रमिकों ने खुशी जताई है। 7 মাস থেকে এখানে ভুটান পৌঁছিলাম, এফএস কোম্পানিতে ছিলাম স্যার। বাড়িতে যাইতে লকডাউনের জন্য তো যাইতে পারি নাই। 20 দিন থেকে চেষ্টা করতেছি, চোখের একটু সমস্যা, ডাক্তার দেখানোতে কোনো কাজ হয় নাই। সমস্যা আছে, আমার বন্ধুগুলো এখনো আছে কোম্পানি থেকে, ওখানে লোকাল লোক ওদের অত্যাচার করতেছে, আসতে পারতেছে না, মানে টর্চার করতেছে, আসতে দিতেছে না, সাইন দিতেছে না। আমি বহুত চেষ্টার ফলে সাইনটা নিয়ে চোখের সমস্যার কারণে আসছি। ওরাও খুব বিপদে আছে। ওখানে অ্যাপকন্স কোম্পানিতে ওয়ালের কাজ, তোষা নদী বাদে। আমরা এখানে 7 মাস থেকে আছি। আমি ওয়েল্ডার কাজ করতাম। বাড়ি যাওয়ার জন্য আমরা 2 মাস থেকে এখানে চেষ্টা করছি। আজকে অনেক চেষ্টা করার পরে আমরা এখানে ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসেডারে অ্যাপ্লিকেশন করার পরে আজকে অনেকদিন পরে আমরা গভর্নমেন্টের কি অথরিটি পেয়েছি। এটা 96 জন টোটাল আসতেছে। এটা ফার্স্ট ফেজে আরও লোক আছে, সেটা পরে আমরা দেখব। এর মধ্যে 35 জন কুচবিহার, 31 জন আমাদের আলিপুরদুয়ার, আর 5 জন জলপাইগুড়ি, 2 জন উত্তর 24 পরগনা, 1 জন হাওড়া মানে কলকাতা সাইডের। এই করে 96 জন আজকে বেরোচ্ছে। एक तरफ देश कोरोना वायरस की जंग लड़ रहा है तो दूसरी तरफ कुदरत अपना कहर बरपा रही है। तूफानी चक्रवात में तब्दील हुआ निसर्ग रात तक ले सकता है भयंकर रूप। अरब सागर में बना भारी दबाव डीप डिप्रेशन आज दोपहर में तूफानी चक्रवात में तब्दील हो गया। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ तटीय इलाकों में चक्रवात निसर्ग को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। यह मंगलवार रात तक भयंकर चक्रवर्ती तूफान में बदल सकता है। यह कल बुधवार उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से गुजरेगा। भारतीय मौसम विभाग IMD के महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र ने इसकी जानकारी दी है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने हालत का जायजा लिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भारत के पश्चिमी तट में कुछ हिस्सों में चक्रवात की स्थिति के मद्देनजर हालत का जायजा लिया। मैं सभी की कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। लोगों से हर संभव सावधानी और सुरक्षा उपाय बरतने का आग्रह करता हूं। चाय बागानों में पूरे दमखम के साथ शुरू हुआ काम, सभी श्रमिकों को मिला रोजगार। लॉकडाउन के 5वें चरण में राज्य सरकार के निर्देश पर उत्तर बंगाल के चाय बागानों में पूरे दमखम के साथ काम शुरू हो गया है। बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन 5 में 100% कर्मचारियों को साथ लेकर चाय बागानों में काम करने की छूट दी गई है। जलपाईगुड़ी शहर से सटे डेंगुआझाड़ चाय बागान में भी पूरी श्रमिकों के साथ आज से कार्य शुरू हुआ है। मंगलवार से चाय बागान में सेकंड फ्लैश चाय पत्ती तोड़ने का काम शुरू किया गया। चाय बागान के सभी श्रमिक काम पर लगे हुए हैं। हालांकि इस दौरान चाय बागान प्रबंधन की ओर से राज्य सरकार की ओर से जारी सभी निर्देशों का पालन किए जाने को लेकर लगातार नजरदारी की जा रही है। चाय बागान में काम के दौरान श्रमिकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। चाय बागान के सीनियर मैनेजर जीवन चंद्र पांडे ने बताया कि बागान प्रबंधन की ओर से सभी श्रमिकों को फेस मास्क दिया गया है। बागान श्रमिक फेस मास्क लगाकर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। এই লকডাউনে যে যা ধরনের ছিল যে আমাদের অবস্থা, যে কাজের জন্য যে আমরা ব্যস্ত ছিলাম সেই কাজটা পাওয়া যায়নি। এখন আমাদের ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে কাজটা খুলছি। 50% মধ্যে একজন, তাছাড়া 100% দুজন সেই শ্রমিকরা এই ম্যানেজারটা যে আছে সেটা আমাদেরকে কাজের সুবিধা দিচ্ছে এবং আমরা এই কাজটা করে টাকা পাচ্ছি এবং পেটের জন্য করতেছি। সেটা পালন হচ্ছে। আর হচ্ছে যে আমরা দূরে দূরে থাকি এবং দূরে থেকে কাজ করতেছি, দূরে থেকে করতেছি। মাস্ক পরে কাজ করতেছি। মাস্ক দিচ্ছে? হ্যাঁ, মাস্ক পরে ওরা সাপ্লাই দিচ্ছে। মাস্ক দিচ্ছে, মানে একটার পর একটা পুরনো হলে আর একটা দিচ্ছে। দেখুন, এটা তো আমার খুশি অনেক, 100% ওনা ডেভেলপমেন্ট যখন দিলেন সরকার, আমরা ওনাকে ধন্যবাদ জানাই।
আর আমাকে একদম রেস্কিউ করে দিয়েছেন ফ্লাশিং টাইমে। ওয়ার্কার যে 25 পরে 50% করার পরে যে ওয়ার্কার বাড়িতে বসেছিল ওরা খুঁজেছে কি কখন আমি কাজ দেব, কিন্তু আমি প্রতিবাদী ছিল এর জন্য কি আমি খুলতে পারলাম না। এখন আমার 100% ডিপ্লয়মেন্টের জন্য আমার প্রত্যেক ওয়ার্কার কাজ পেয়ে গেছে, আমার ফ্লাশ পুরা এসেছে, ওকে আমরা তুলতে পারবো আর নিশ্চয় আমরা ভালো কোয়ালিটি তৈরি করতে পারবো আর ভালো চা হবে। অনেক দরকার ছিল, এখন তো আমার পিক ফ্লাশিং পিরিয়ড অ্যাজ ইট ইজ আমরা লস করেছি এপ্রিল মে মাসে পাতাটা, ওরা এখন গাছটা একদম বসে আছে আর পুরা পাতা দিচ্ছে। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।